السلام علیکم۔ دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ یہ ستمبر کی سرد راتوں کی بات ہے۔ عبداللہ ایک سنسان سفر پر محو سفر تھا۔ وہ اپنے آبائی گاؤں چندن پور اپنی دادی سے ملنے جا رہا تھا۔ آسمان پر چھائے بادل کسی بھی وقت بارش ہونے کا اعلان کرنے والے تھے۔ حالانکہ جس وقت عبداللہ اپنے گھر سے نکلا تھا اس وقت موسم بالکل صاف تھا۔ سردی کا اتنا احساس اس وقت نہ تھا جتنا کہ اب ہو رہا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ وہاں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوگی تو وہ گھر سے نکلتے وقت کوئی گرم چادر وغیرہ ضرور لے آتا۔ اب اس کے پاس صرف ایک کوٹ تھا جسے اس نے سردی سے بچنے کے لیے پہن رکھا تھا، لیکن یہ اسے سردی سے بچانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اپنے گھر سے تو وہ جلدی نکلا تھا، پر راستہ خراب ہونے کی وجہ سے بس بھی خراب ہو گئی تھی۔ جس وقت بس نے اسے اڈے پر اتارا اس وقت رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ سردی سے اس کے جسم میں کپکپی طاری تھی۔ گہری دھند رات کی تاریکی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر چونکہ اڈے پر کوئی بس نہ تھی اور نہ ہی وہاں سے کسی اور بس ملنے کا امکان تھا، اس لیے اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے دادا دادی سے ملنے وہ پہلی بار گاؤں جا رہا تھا۔ گاؤں جانے کا پورا راستہ اس کے ابو نے اسے سمجھا دیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ دادا دادی کو سرپرائز دے گا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا رہا تاکہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ اچانک آسمان پر بجلی چمکی جس سے وہ گھبرا گیا۔ وہ مضبوط دل کا مالک تھا، لیکن خوف ایک قدرتی امر ہے جو کہ بڑوں بڑوں کی ہوا نکال دیتا ہے۔ بجلی کی چمک کسی بھی وقت بارش کے ہونے کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ اب بجلی وقفے وقفے سے کڑک رہی تھی۔ وہ کچھ ہی قدم چلا ہوگا کہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش ہلکی ہلکی بوندا باندی کی صورت میں تھی۔ اس کے پاس اس سے بچنے کے لیے کوئی چھتری وغیرہ بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے ایک نزدیکی درخت کے نیچے پناہ لینے میں عافیت سمجھی۔ اس نے ایک بڑے گھنے درخت کا انتخاب کیا۔ یہ درخت ارد گرد کھڑے تمام درختوں سے پرانا اور گھنا تھا۔ اس کی شاخیں مضبوط اور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ درختوں سے چھن کر گرتی بارش کی بوندیں جب زمین پر پڑتی تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی۔ اندھیری رات میں یہ آواز بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ وہ بارش کے رکنے کی دعائیں کرنے لگا، لیکن بارش تھی کہ تھمنے کی بجائے پہلے سے بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بارش کے ساتھ بجلی کی ہر چمک اور کڑک کچھ لمحوں کے لیے ماحول کو روشن اور خوفناک بنا دیتی۔ اس کے خوف میں متواتر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا۔ مسلسل 1 گھنٹہ برسنے کے بعد بارش کا زور آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوا بالکل ختم ہو گیا۔ عبداللہ تقریباً مکمل بھیگ چکا تھا، کیونکہ بارش کے وہ قطرے جو کہ پتوں سے چھن کر آ رہے تھے وہ ان سے محفوظ نہ رہ سکا۔ سردی میں اب مزید اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے سب کو نظر انداز کیا اور درخت کے نیچے سے نکل کر پھر سڑک پر چلنے لگا۔ بارش ہونے کی وجہ سے سڑک پر جگہ جگہ کیچڑ ہو گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گڑھے پانی سے بھر گئے تھے۔ بارش تو بند ہو گئی تھی، لیکن بجلی کی چمک اب بھی وقفے وقفے سے جاری تھی۔ اس وقت وہ درختوں کے درمیان بنے کچے راستے پر چل رہا تھا۔ ابھی وہ 10 منٹ ہی چلا ہوگا کہ بارش پھر سے شروع ہو گئی۔ بارش اس مرتبہ پہلے سے تیز تھی۔ وہ دوڑ کر ایک درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ یہ پہلے درخت کی نسبت چھوٹا اور کم گھنا تھا۔ موسم کی اس اچانک تبدیلی سے وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ دفعتاً بجلی پھر چمکی، جس میں اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو خود کو ایک اجڑے ہوئے کھیت کے پاس پایا جو کہ غالباً مکئی کا تھا۔ بارش آدھا گھنٹہ تک اسی طرح برسی اور دل کھول کر برسی۔ بجلی پھر چمکی۔ اس دفعہ اس کی چمک اور کڑک اس قدر زوردار تھی کہ عبداللہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ بجلی کی روشنی میں اس نے ایک اور درخت دیکھا جو کہ اس سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ اسے اس درخت کے پاس ایک سایہ نظر آیا جو کہ درخت کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر ایک انجان جگہ پر سایہ دیکھ کر ڈرنا ایک فطری امر ہے، اس لیے وہ ڈر گیا۔ اس نے اس سائے کی طرف دیکھا۔ سایہ کسی لڑکی کا لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب سے خیالات ابھرنے لگے۔ بارش ایک مرتبہ پھر بند ہو چکی تھی۔ انسانی ہمدردی کے ناطے وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا تاکہ اس سے پوچھے کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ خیر، اس نے دل کو پختہ کیا اور اس کی طرف چل پڑا۔ آخر وہ اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ ایک لڑکی ہی تھی۔ اس کی پشت اس کی طرف تھی اور منہ دوسری طرف تھا۔ کون ہو تم؟
बिलाखिर अब्दुल्ला ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। अब्दुल्ला के सवाल पर वो मुड़ी तो उसे देखते ही वो सकते में आ गया। इतने में जोरदार बिजली चमकी तो लड़की का सरापा नजर आया। वो बला की हसीन थी। भीगा संगे मरमर सा जिस्म अब्दुल्ला के हवास पर छा गया। वो अब्दुल्ला की तरफ गौर से देखने लगी। मेरा नाम सबा है, लड़की ने अपना तारुफ करवाया। पर इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल अब्दुल्ला ने अगरचे नॉर्मल अंदाज में किया था, लेकिन हकीकत में वो बहुत डरा हुआ था। मैं यहाँ नज़दीक ही रहती हूँ, मैं शहर गई थी अपने अब्बू की दवाई लेने, वो बहुत बीमार हैं। लेकिन आते हुए देर हो गई और फिर बारिश के सबब मुझे यहाँ रुकना पड़ा। पर तुम कौन हो? लड़की ने अब्दुल्ला से सवाल किया। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं शहर से आया हूँ अपने दादा दादी से मिलने, अब्दुल्ला ने तारुफ करवाया। कहाँ रहते हैं वो? लड़की ने एक और सवाल किया। वो चंदनपुर गांव में रहते हैं और वो मेरा आबाई गांव है। बस रास्ते में ख़राब हो गई थी, इसलिए देर से पहुंचा और फिर कोई सवारी ना मिलने पर पैदल चल पड़ा और फिर बारिश के सबब मुझे भी यहाँ रुकना पड़ा, अब्दुल्ला ने मुख्तसरन बतलाया। क्या तुमने चंदनपुर गांव का नाम सुना हुआ है? अब्दुल्ला ने सवाल किया। वो उससे जानबूझकर बातें बढ़ा रहा था ताकि 2 पल मजीद उसके साथ बिता सके। हाँ, सुना भी हुआ है और देखा भी है, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। अगर इसी तरह पैदल चलते रहे तो 2.5-3 घंटों में पहुँचोगे। तुम एक काम करो, आज रात हमारे घर क़याम कर लो, सुबह होते ही मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगी। अब्दुल्ला उस लड़की की हिम्मत पर हैरान था। सख्त सर्दी में लड़की को सर्दी का बिल्कुल एहसास न था। इसके बरक्स उसने खुद एक कोट और मोटे कपड़े पहन रखे थे और इन सब के बावजूद उसे ज़बरदस्त ठंड लग रही थी। इस वक्त रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर वहाँ जाओगे तो रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। रास्ते में जंगली जानवर और भेड़िए बहुत हैं, इसलिए तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। लड़की ने अब्दुल्ला को रास्ते में पेश आने वाले खतरात से आगाह किया। इससे पहले कि अब्दुल्ला कुछ सोचकर फैसला करता, लड़की ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया। अब्दुल्ला को अपने जिस्म में चिमटियाँ सी रेंगती हुई महसूस हुई। उसने अपना हाथ उस लड़की से छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त उसके हाथ पर सख्त थी। वो उस लड़की के रूप पर हैरान और परेशान था। वो अब्दुल्ला का हाथ पकड़े रास्ते से हटकर खेतों के दरमियान बनी एक पगडंडी पर चलने लगी। अब्दुल्ला का हाथ बदस्तूर उस लड़की के हाथ में था। कभी कभार वो मुड़कर उसे मुस्कुराकर देखती तो वो भी आगे से रस्मन मुस्कुरा देता, लेकिन हकीकत में वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसकी छठी हिस्स उसको आने वाले खतरात का अलार्म दे रही थी। तुम्हारे साथ और कौन रहता है? अब्दुल्ला ने बेतकल्लुफाना सवाल किया। वो भी हैरान था कि उसने ऐसा सवाल क्यों और कैसे किया। लड़की ने मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला की तरफ देखा और बोली, मैं और मेरे बूढ़े वालिद माँ बचपन में ही छोड़कर चल बसी। उस वक्त मैं 7 साल की थी। अब्बू ने ही मेरी परवरिश की है। अब लड़की ने अब्दुल्ला का हाथ छोड़ दिया था। वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि लड़का होकर लड़की से डरना शर्म की बात है। जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर वो मुसलसल उसके साथ चल रहा था। लड़की उसे साथ लिए आधा घंटा तक चलती रही। आखिर वो एक बोसीदा घर के पास पहुंच गए। घर इंतहाई खस्ता हाल और बोसीदा था। घर दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ था। अब्दुल्ला को उस जगह से डर लगने लगा, और ख़ास तौर पर उस लड़की से जो उस वक्त उसके साथ थी। उस लड़की ने खंडरनुमा घर का इंतहाई बोसीदा और बड़ा दरवाज़ा धकेला तो वो चरचराहट की आवाज़ के साथ खुल गया। घर में मुकम्मल अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से कोई रोशनी ना हुई हो। तुम यहाँ ठहरो, मैं रोशनी का इंतज़ाम करती हूँ। ये कहकर वो लड़की अंधेरे में यूं गायब हो गई जैसे उस अंधेरे का ही हिस्सा हो। अब्दुल्ला वहाँ अकेला रह गया। उसको गंभीर सन्नाटे और अंधेरे में डर लगने लगा। वो वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगा। उसने अंधेरे में दरवाजे का तयन किया और दौड़ा, लेकिन ये क्या, उसका सर किसी सख्त दीवार से टकराया तो वो गिर गया। दीवार से उसकी टक्कर इस कदर सख्त और ज़ोरदार थी कि उसे अपना सर घूमता महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसने हिम्मत की और एक बार फिर खड़ा हो गया। उसको बहुत हैरानी हुई कि अभी तो वो दरवाजे से अंदर आया था, तो फिर वो दरवाज़ा आखिर गया कहाँ। उसका दिल घबराने लगा। उस लड़की को गए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, पर वो अभी तक नहीं आई थी। अचानक अब्दुल्ला को लगा जैसे उसके आसपास कोई है। उसे किसी की सांसों की गूंज वाज़ेह सुनाई दे रही थी। फिर उसे अपनी गर्दन पर दबाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसे अपनी गर्दन पर सुइयां सी चुभती महसूस हुई तो वो सर से पांव तक कांप गया। इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिरता, उसने हिम्मत करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक घूंसा बनाया और फिर एक जानिब का तयन करके
पूरी कुव्वत से उसे घुमाया। एक हल्की सी चीख उसे सुनाई दी और साथ ही उसकी गर्दन पर दबाव भी कम हो गया। चीख किसी बूढ़े आदमी की थी। सख्त सर्दी में भी उसके माथे से पसीने की बूंद टपक पड़ी। फिर उसे अपनी तरफ एक रोशनी आती दिखाई दी। यह रोशनी एक लालटेन से फूट रही थी जिसको सबा ने उठाया हुआ था। लगता है बारिश की वजह से बिजली का कनेक्शन कट गया है। अब पता नहीं कब तक ठीक होगा। बस तुम मेरे पीछे पीछे चलते आओ, सबा ने उससे कहा और वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने पर मजबूर हो गया। वो लड़की उसे मुख्तलिफ कमरों से होती हुई एक हाल में ले आई। ये हाल बाकी तमाम कमरों से जिनसे वो गुजर कर आया था उनसे वसी था। इस बड़े हाल में सिर्फ एक चारपाई थी, उसमें एक चिराग जल रहा था। हैरत की बात यह थी कि उस चिराग से फूटने वाली रोशनी सुर्ख रंग की थी, जो कि इस माहौल को पुरस्कार बना रही थी। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, सबा ने कहा और फिर अब्दुल्ला का जवाब सुने बगैर ही चली गई। अब्दुल्ला एक बार फिर उस वसीओ अरीज हाल में तन्हा रह गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गर्म भाप उठता खाना और पानी का एक जग था जिसमें सुर्ख रंग का गाढ़ा मशरूब था। अब्दुल्ला को भूख तो थी ही, गर्म खाना देखकर और भी तेज हो गई। उसने ये भी ना सोचा कि थोड़े वक्त में खाना कैसे तैयार हो सकता है। अब्दुल्ला ने जैसे ही पहला निवाला लिया उसे क़य आ गई, क्योंकि उस खाने का जायका बिल्कुल अजीब था। क्या हुआ? सबा ने परेशान होते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, अब्दुल्ला ने बहाना किया। ठीक है तो पानी पी लो, सबा ने कहा तो अब्दुल्ला ने जग से गिलास भरा और घटाघट पी गया। पानी पीते ही अब्दुल्ला को अपने सर में दर्द महसूस हुआ और उसके बाद वो होश की दुनिया से बेगाना होता चला गया। रात के न जाने कौन से पहर उसकी आंख खुली। कमरे में लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। अब्दुल्ला को अपने ऊपर एक साया झुका महसूस हुआ। अब्दुल्ला ने उसको जैसे ही बालों से पकड़कर ऊपर उठाया तो उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उसके ऊपर झुकने वाली एक चुड़ैल थी जो कि उसका खून पी रही थी। उस चुड़ैल का चेहरा इंतहाई सिया था। उसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां थीं और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख। उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए उसे जोरदार धक्का दिया और दौड़ लगा दी। वो इस कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ भागने लगा। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि दरवाज़ा अब खुला हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद उसने अपनी रफ्तार में बिल्कुल कमी न की और अंधाधुंध भागता रहा। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि वो अब कहाँ भागा जा रहा है। उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी जान बचाने की। उस धोखा देने वाली चुड़ैल से आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था, सितारे चमक रहे थे। बारिश की वजह से जगह जगह कीचड़ बन गया था। मुसलसल भागने से वो बहुत थक गया था। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगीं। अचानक उसका पांव किसी बड़े पत्थर से टकराया और इसके साथ ही वो होश की दुनिया से बेगाना होता चला गया। उसने जब आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी मकाम पर पाया। वो घबरा कर उठने ही वाला था कि उसे अपने अक़ब से एक आवाज़ सुनाई दी। लेटे रहो बेटा। उसने चौंक कर आवाज़ की सिमत देखा तो उसकी नज़र एक बारिश बुजुर्ग पर पड़ी जिनकी उम्र कम से कम 80 साल के लगभग थी। उनके हाथों में तस्बीह और बदन पर सफ़ेद लिबास थे। आप कौन हैं? मैं इस वक्त कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया? अब्दुल्ला ने कई सवाल एकदम बुजुर्ग से कर डाले। वो बुजुर्ग पहले तो थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम बहुत थके हुए मालूम होते हो। नहीं बाबा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कि मैं कहाँ हूँ? अब्दुल्ला ने बुजुर्ग से इल्तिजा की। जब बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को इस कदर परेशान और हैरतज़दा देखा तो वो बोले, तुम मुझे इस रास्ते में बेहोश पड़े मिले थे। तुम्हारी हालत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तुम पसीने में शराबूर थे। लगता है तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। मुझे बताओ बेटा, तुम बेहोश क्यों हुए थे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब्दुल्ला ने बुजुर्ग को अपना मुखलिस समझा और अपने साथ गुजरा सारा वाक़या कह सुनाया। बुजुर्ग उसकी कहानी को तवज्जो से सुनते रहे, फिर बोले, ओहो, तो ये बात है। पर आप कौन हैं बाबा जी? अब्दुल्ला ने दोबारा वही सवाल दोहराया। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, इसी जंगल में मेरा मस्कन है, बुजुर्ग ने तारुफ करवाया। बहुत सी सरकश ज़िद्दी चुड़ैलों और बदरूहों को मैंने कैद कर रखा है। इस जंगल की हर चीज़ पर मेरी हुकूमत है। पर लगता है तुमने जिस चुड़ैल से पीछा छुड़ाया है वो बहुत ही ख़तरनाक और ताकतवर थी। एक बात याद रखो, चुड़ैल एक बार जिस इंसान का खून चख लेती है उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक उसके सारे जिस्म का खून ना निचोड़ ले। और उसने तुम्हारा खून चख लिया है और अब वो तुम्हें ज़रूर ढूंढेगी।
बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को ये सब बताया तो वो घबरा गया। उसका वास्ता ज़िंदगी में कभी चुड़ैल से नहीं हुआ था। उसने उनके बारे में सिर्फ कहानियाँ सुन रखी थीं। उसे क्या मालूम था कि जिन कहानियों को सुनकर वो हंसता था, एक दिन उसकी असली ज़िंदगी में भी रूनुमा होंगी। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला का डरा चेहरा देखा तो उसे दिलासा दिया कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ, ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरा राज चलता है। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी जिन भूत यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पर भी जिन रहते हैं पर वो सब मेरे मातहत हैं। मुझे पता करना होगा कि वो चुड़ैल जिससे तुम मिले थे वो कौन थी। ये सब मालूम करने के लिए मुझे आज रात अमल करना होगा। अब तुम फिलहाल आराम करो, मैंने तुम्हारे नाश्ते के लिए कह दिया है। ये कहकर बुजुर्ग झोंपड़ी से बाहर निकल आए। अब्दुल्ला एक मर्तबा फिर तन्हा रह गया। उसने झोंपड़ी का जायज़ा लिया। उसमें घास फूस का फर्श, पानी का एक घड़ा और मिट्टी का गिलास मौजूद था, लेकिन जहाँ वो बुजुर्ग बैठे थे वहाँ पर किसी जानवर की खाल बिछी हुई थी। फिर उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी, खाना खा लो बाबूजी। अब्दुल्ला ने पलटकर देखा तो खौफ से उसकी सांसें रुकने को थीं। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आवाज़ देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक अजीबुल खलकत वजूद था। कौन हो तुम? उसने डरते हुए लहजे में उस अजीबुल खलकत से पूछा। मेरा नाम लोका सिंह है, उसने इंसान की तरह आगे बढ़कर कहा और खाना चारपाई पर रख दिया। मैं बाबा जी का भगत हूँ। अब्दुल्ला ने कालू सिंह से कई सवाल और कर डाले। मैं एक जिन हूँ बाबूजी। पहले बाबा जी ने मुझे कैद किया था, फिर मुझे आज़ाद कर दिया, लेकिन उनकी खुश इखलाकी से मुतासिर होकर मैं इनके पास ही रह गया। वो गुलामों की तरह हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। भूख तो अब्दुल्ला को जोरों की लगी थी, लेकिन गर्म खाना देखकर और भी तेज हो गई थी। उसने पहले खाने की तरफ देखा और फिर उस अजीबुल खलकत वजूद की तरफ देखा तो वो समझ गया कि वो उसे बाहर भेजना चाहता है, इसलिए चुपचाप बाहर चला गया। उसके जाते ही अब्दुल्ला खाने पर टूट पड़ा। खाना इतना लजीज था कि वो उसे मिनटों में चट कर गया। उसके बाद उसने जग से पानी पिया, जिससे उसकी खोई हुई तवानाई बहाल हो गई। जब वो खाना खा चुका तो वो अंदर आया और बर्तन लेकर चला गया। खाना खाकर अब्दुल्ला चारपाई पर लेट गया। वो दिल ही दिल में उस चुड़ैल और उस बुजुर्ग के बारे में सोचने लगा कि पता नहीं बाबा जी उस चुड़ैल के बारे में जान पाएंगे या नहीं। उसने आंखें मूंद लीं। उसके बाद कब वो नींद की गहरी वादियों में चला गया उसे पता ही न चला। शाम के वक्त वो सोता रहा। शाम को बुजुर्ग के उठाने पर उसकी आंख खुली, जो कि उसे खाना खाने का कह रहे थे। उसने उठते ही सबसे पहले उस चुड़ैल के बारे में पूछा कि उसका पता चला कि नहीं। बेटा, अभी तक पता नहीं चला, इसके लिए अमल आज रात करूँगा। तुम बेफिक्र रहो, अगर खुदा ने चाहा तो उसकी कमज़ोरी मालूम करके उसे फना कर दूंगा। बुजुर्ग उसे दिलासा देते हुए बोले, खुदा करे ऐसा ही हो। उसने दिल ही दिल में कहा, फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। शाम को जाते हुए बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को सख्ती से मना किया कि आज रात तुम इस झोंपड़ी से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है बाबा जी, जैसे आपका हुक्म, अब्दुल्ला ने मौदब लहजे में कहा। शाबाश बेटा, ये हुई ना अच्छी बात। बुजुर्ग ने उसे थपकी दी। अब तुम सो जाओ, मुझे अमल के लिए जाना है। दुआ करना कि मैं कामयाब लौटूं। ये कहकर बुजुर्ग झोंपड़ी से बाहर निकल गए। अब्दुल्ला फिर लेट गया। इस बार उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको बुजुर्ग पर पूरा भरोसा था कि वो ज़रूर उस चुड़ैल को ख़त्म कर देंगे। वो यूं ही लेटा रहा। रात को उसे महसूस हुआ जैसे उसे कोई बाहर बुला रहा हो। पहले पहल तो उसे ये अपना वहम लगा। जब उसे आवाज़ें मुसलसल सुनाई देने लगीं तो उसे यकीन हो गया कि बाहर कोई है। वो उठकर बाहर जाने वाला था कि उस आवाज़ के बारे में मालूम कर सके। फिर उसे बुजुर्ग की हिदायत याद आ गई कि बेटा, आज किसी सूरत भी बाहर मत निकलना। उसने बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया और आकर दोबारा लेट गया। सारी रात उसे यही आवाज़ें परेशान करती रहीं। फिर उसने उन सबको अनसुना कर दिया और यूं ही करवट बदलते रात गुजर गई। सुबह उसके लिए कालू सिंह नाश्ता लेकर आ गया। उसने बुजुर्ग के बारे में पूछा कि वो आए कि नहीं। नहीं, अभी तक नहीं आए, पर आए तो मैं आपको आगाह कर दूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए और नाश्ता कर लीजिए। अब्दुल्ला ने उठकर घड़े से पानी लिया और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने लगा। हस्बे आदत वो बर्तन खाली हुए तो कालू सिंह उसे उठाकर चलता बना। अब उसे बाबा जी का इंतज़ार था ताकि उनसे अमली तौर पर चुड़ैल के बारे में मालूम करे। सुबह के 9 या 10 बजे उसका ये तवील इंतज़ार रंग लाया और बाबा जी वापस आ गए। आते ही अब्दुल्ला ने उनसे चुड़ैल के बारे में पूछा। गौर से सुनो बेटा, वो बहुत ही जालिम और ताकतवर चुड़ैल है। रात के अमल में मुझे पता चला है कि वो बहुत ही खतरनाक है।
मासूम और सीधे साधे मुसाफिरों और राहगीरों को बहला फुसला कर मंदिर में ले जाती है जहां वो तुम्हें भी ले गई थी। फिर वो वहां उनका खून पीती है। लोगों का खून पीकर ही वो जवान और खूबसूरत दिखती है, वरना उसका असली चेहरा वही है जो तुमने खून पीते हुए देखा था। और जिस बूढ़े के बारे में जिस उसने बताया था कि वो उसका बाप है, दर हकीकत वो उसका गुरु है जो कि बदरू है। खून पीना उन दोनों का मशगला है। बेटा, उनकी ताकतें इंसानी खून पीने और गोश्त खाने से बहुत बढ़ गई हैं। बेटा, उनको मारना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर इनका कोई हल ना किया गया तो वो ऐसे ही मासूम और बेकसूर लोगों को मारते और उनका खून पीते रहेंगे और अपनी ताकत में इजाफा करते रहेंगे। बाबा जी, मैं उनको ज़रूर ख़त्म करूँगा। बुज़ुर्ग की बातें सुनकर अब्दुल्ला जोश और जज्बे से बोला, शाबाश बेटा, एक अच्छे मुसलमान से यही उम्मीद हो सकती है। बुज़ुर्ग अब्दुल्ला की हिम्मत की दाद देते हुए बोले, बेटा, मेरे साथ तुम्हें भी एक ख़तरनाक अमल करना होगा जिससे तुमको बेपनाह ताकतें हासिल हो जाएंगी और उन्हीं ताकतों से तुम उन दोनों का मुकाबला करके उन्हें ख़त्म कर सकते हो। वैसे तो ये अमल मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन तुम्हारा साथ होगा तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा, इस अमल में तुम्हें हर तरह से डराया धमकाया जाएगा और तुम्हारे अमल को नाकाम बनाने के लिए कई हरबे आजमाए जाएंगे और हिसार से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, अगर तुम अमल छोड़कर हिसार से बाहर आ गए तो अपनी जान से जाओगे, और इसके बरक्स अगर तुम साबित कदम रहोगे तो जीत तुम्हारी होगी। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को अमल के ख़तरात से तफसीलन आगाह किया। मैं हर तरह की मुसीबत और आफत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ बाबा जी। अब्दुल्ला ने पुख्ता अज़म किया। फिर बुजुर्ग ने उसे अमल के कलमात याद करा दिए जिसे उसने अच्छी तरह याद कर लिया। बुजुर्ग दोबारा बोले, बेटा, ये अमल 3 दिन का है क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं, और हाँ, ये अमल तुम्हें जंगल में करना होगा। फिर बुजुर्ग ने उसे एक खंजर और एक तावीज़ दिया और बोले, इनको संभाल कर रखना और तावीज़ को खुद से जुदा न करना, क्योंकि इनके होते हुए किसी भी भूत या जिन का वार बेअसर है। अब्दुल्ला ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। रात के 8 बज रहे थे। जंगल बहुत ज़्यादा घना था। अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर एक जगह को साफ किया और फिर अपने साथ लाए खंजर से हिसार खींचा और उसमें बैठकर अमल के कलमात का विर्द करने लगा। कुछ पल तो सब कुछ ठीक रहा। फिर तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि हवा हिसार के बाहर ही थी। हवा ने ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली। ऐसे लगने लगा जैसे दरख्त जड़ों से उखड़ने वाले हों। कुछ देर बाद तूफान का जोर टूट गया। अब हर तरफ पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए थे। फिर उसे शेरों की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल धक धक करने लगा। उसे 2 शेर अपनी तरफ आते दिखाई दिए। ये शेर बहुत ही खूनख्वार लग रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला की तरफ बढ़ने लगे। एक बार तो उसका दिल किया कि उठकर भाग जाए। फिर बुजुर्ग की आवाज़ पर उसकी ढारस बंधी कि बेटा, ये सब नज़र का धोखा है। खौफ से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ोर ज़ोर से अमल के अल्फाज दोहराने लगा। शेरों की आवाज़ उसे करीब से करीब तर आती महसूस हुई। उसने आंखें खोलकर देखा तो शेर बिल्कुल ही करीब आ गए। फिर इन दोनों ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन वो हिसार से टकराते ही गायब हो गए। अब वो एक नई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार था। रात के 2 बजने वाले थे कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक 5 साला बच्चा, जो शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत ही मासूम था, बैठा रो रहा था। उसे उस बच्चे पर बहुत तरस आया। फिर उसने एक खौफनाक बला को देखा जो उस बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। उस बला की तरफ देखकर वो बच्चा ऊंची आवाज़ से रोने लगा। वो बला इस कदर खौफनाक थी कि खुदा की पनाह। बला ने कहर आलूद नज़रों से अब्दुल्ला को देखा, फिर बोली, ए लड़के, अपना अमल छोड़ दे वरना इस बच्चे को खा जाऊंगी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बिजली कड़क रही हो। उसने उस बला की बात पर ध्यान न दिया और अमल पढ़ने में मसरूफ़ रहा। अब्दुल्ला को बुजुर्ग ने बताया था कि अमल में नज़र आने वाले वाक़यात महज फ़रेब नज़र और धोखा होंगे और अमल को ख़त्म करने के लिए होंगे, इसलिए वो साबित कदम रहा। उस बला ने उस रोते बच्चे को उठाया और उसकी नज़रों के सामने चीर फाड़ कर खा गई। अब्दुल्ला के लिए वो मंजर दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। उस बच्चे को खाने के बाद वो अब्दुल्ला की तरफ बढ़ी और बोली, ए लड़के, अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले और अमल छोड़ दे और यहाँ से चला जा, वरना तेरा हशर में इससे भी बुरा करूँगी। अब्दुल्ला ने उसको महज धमकी समझा और अमल पढ़ने में मशगूल रहा। फिर वो बला गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर जैसे ही वो हिसार से टकराई, उसे आग ने अपनी लपेट में ले लिया और वो उसके सामने ही जलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी।
عبداللہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی، پھر پوری رات پرامن رہی۔ عبداللہ کا ایک رات کا عمل مکمل ہو گیا کیونکہ صبح ہو گئی تھی۔ پھر اسے بزرگ کی آواز سنائی دی، اپنی آنکھیں بند کر لو بیٹا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جب آنکھیں کھولی تو خود کو بابا جی کی جھونپڑی میں پایا۔ بزرگ اٹھ کر عبداللہ سے ملے اور ایک رات کا عمل پورا ہونے پر اور ثابت قدم رہنے پر مبارکباد دی۔ پھر عبداللہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد بزرگ نے اسے سو جانے کے لیے کہا کیونکہ آج آنے والی رات پھر اسے جاگنا ہے۔ رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس لیے وہ بستر پر لیٹ گیا اور میٹھی نیند لینے لگا۔ شام تک وہ سوتا رہا، پھر حسب معمول اٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر بزرگ نے اسے رات کے عمل کے خطرات سے آگاہ کیا اور ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی کی۔ اس نے عمل کے کلمات بزرگ کو سنائے تاکہ اگر اس میں غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے، لیکن وہ اسے اچھی طرح یاد ہو گئے تھے۔ پھر اس نے خنجر اور تعویذ جو کہ بزرگ نے اسے دیے تھے اٹھا لیے۔ بابا جی نے اسے ڈھیروں دعائیں دی اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا کیونکہ اس کے عمل کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور جب کھولی تو اپنے آپ کو عمل والی جگہ پر کھڑا پایا۔ بزرگ کے پاس واقعی بہت طاقتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ اسے منٹوں میں اس کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیتے، ورنہ اگر اسے پیدل چلنا پڑتا تو نہ جانے وہ اس جگہ پر کتنی دیر میں پہنچتا۔ اس نے اپنی جگہ کو صاف کیا، حصار کھینچا اور بیٹھ کر ورد کرنے لگا۔ اب وہ آنے والے خطرات سے پہلے ہی آگاہ تھا کہ آج کی رات پہلے والی رات سے زیادہ سخت ہوگی۔ اسے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آسمان سے بارش ہونے لگی۔ وہ ڈر گیا کیونکہ یہ عام بارش نہیں بلکہ خون کی بارش تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کل کی طرح یہ سب حصار کے باہر ہو رہا تھا۔ پھر اسے دور سے اپنی طرف ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ وہ جب اس کے نزدیک آئی تو عبداللہ اس کے حسن میں کھو کر سب کچھ بھول گیا۔ وہ لڑکی حصار سے تھوڑا ہٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بت بنا اس حسن کی دیوی کو تکے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی افسردہ تھی، پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی عبداللہ کے دل کو بھا گئی۔ وہ بھی ٹکٹکی باندھے عبداللہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس سے مخاطب ہوئی، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اگر کرنا چاہتے ہو تو حصار سے باہر نکل آؤ، ہم شادی کر کے ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ عبداللہ اس کے حسن کے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ وہ حصار سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ بزرگ کی آواز سنائی دی، بیٹا یہ سب ایک فریب ہے، اس لڑکی کی باتوں میں مت آؤ، یہ خوبصورت نہیں بلکہ بدصورت چڑیل ہے۔ حصار سے باہر نکلتے ہی یہ تمہیں مار ڈالے گی اور خون پیے گی۔ بابا جی کی آواز سن کر وہ اس لڑکی کے سحر سے آزاد ہوا۔ اس نے خود کو بہت ملامت کیا اور عمل دوبارہ پڑھنے میں لگ گیا۔ اس لڑکی نے اسے بہت بہلایا پھسلایا، پر اب وہ سنبھل چکا تھا۔ لڑکی نے اسے دولت اور شہرت کا لالچ دیا، پر اب وہ اس کے مکر میں کہاں آنے والا تھا۔ جب اس کی تمام تر ترکیبیں ناکام ہو گئی تو لڑکی نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے 2 لمبے لمبے دانت ظاہر ہو گئے، اس کے ناخن کئی انچ کے ہو گئے، اس کی ناک بالکل غائب ہو گئی اور بال زمین کو چھونے لگے۔ وہی لڑکی جس کو پہلے وہ حسن کی دیوی سمجھ رہا تھا فدا ہوا جا رہا تھا، اب اس کو دیکھ کر کراہیت ہو رہی تھی۔ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو سے عبداللہ کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ دل یوں زور زور سے دھڑکنے لگا جسے پسلیوں کے پنجر توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ قریب آتی آتی جب وہ حصار سے ٹکرائی تو اسے آگ لگ گئی۔ وہ یوں جلنے لگی جیسے اس پر پیٹرول چھڑک کر جلا دیا گیا ہو۔ اس طرح جلتی وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے دوسرے دن کا عمل بھی پورا ہو گیا۔ عبداللہ نے حصار سے باہر قدم رکھا، اس کے سامنے وہی مندر والا بوڑھا ظاہر ہو گیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوا جا رہا تھا۔ بوڑھے نے قہر آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو تیروں کی ایک بوچھاڑ عبداللہ کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہ قریب آتے ہی غائب ہو گئے۔ بوڑھے نے اپنا وار ناکام دیکھا تو اور بھی زیادہ غصہ ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے تو ایک چمکتی تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ عبداللہ پہلے تو اس سے ڈر رہا تھا مگر اب وہ تیار تھا، اور پھر جیسے ہی بوڑھے نے اس پر وار کیا تو اس کا وار ناکام ہو گیا۔ پھر اچانک بوڑھے کی گردن کٹ کر دور جا پڑی۔ گردن کے کٹتے ہی خون فوارے کی مانند بہنے لگا۔ وہ کچھ دیر تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر عبداللہ کو بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا جلدی سے آنکھیں بند کرو ورنہ چڑیل آ کر تمہیں مار ڈالے گی۔ عبداللہ نے فوراً ہدایت پر عمل کیا اور فوراً سے پہلے جھونپڑی میں تھا۔ بابا نے اسے خوشی سے گلے لگایا، واہ بیٹا واہ، تم نے تو آج کمال کر دیا، اب تم آسانی سے چڑیل کو مار سکو گے۔ بابا جی میری جیت میں سب سے بڑا کمال تو آپ کا ہے۔
अच्छा ठीक है, अब बातें छोड़ो और खाना खाकर आराम करो। आज आखिरी रात का अमल बाकी है। ये रात बाकी 2 रातों से ज़्यादा सख्त होगी। इसमें तुम्हारे पास इतनी खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैलें आएंगी जिनका तसव्वुर भी तुम्हारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन बेटा, अपने दिल को मजबूत रखना। अब मंजिल बिल्कुल करीब है और मुझे यकीन है तुम उसे ज़रूर हासिल कर लोगे। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को हिम्मत दिलाई और वो खामोशी से सुनता रहा। फिर अब्दुल्ला के लिए गर्मा गर्म खाना लाया गया जिसे उसने जी भर कर खाया। खाना खाकर बुजुर्ग उसे कुछ देर अमल के मुतालिक बताते रहे और फिर बुजुर्ग ही के कहने पर वो लेट गया। लेटते ही वो मीठी नींद के मज़े लेने लगा। आज उसकी आंख खिलाफे तवक्को असर के वक्त खुल गई। उसने झोंपड़ी में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। बाबा जी भी कहीं बाहर चले गए थे। उसने उठकर मुंह हाथ धोया और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। वो बाहर के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि उसे एक तरफ से बुजुर्ग आते दिखाई दी। वो बहुत परेशान लग रहे थे। वो उसके पास से गुजरकर बगैर कोई बात किए झोंपड़ी में दाखिल हो गए। बुजुर्ग के इस रवैये पर उसे बेहद हैरानी हुई। वो उनके पीछे चला आया। बुजुर्ग अंदर सर झुकाए गहरी सोच में गर्क थे। क्या हुआ बाबा जी? अब्दुल्ला ने परेशानी से सवाल किया। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बुजुर्ग ने साफ झूठ बोल दिया। कुछ बताएं, क्या हुआ है? मैंने इससे पहले आपको इतना परेशान नहीं देखा, अब्दुल्ला बोला। बेटा, उस चुड़ैल को पता चल गया है कि तुमने ही उसके गुरु को मारा है। अब वो तुम पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। उसने एक रात का ऐसा चिल्ला कर लिया है जिसकी वजह से उसके शैतान आका ने उसे बेइंतहा ताकतें दे दी हैं। उस बूढ़े ने भी मरने से पहले अपनी सारी शक्तियाँ उसे दान कर दी थी जिससे वो मजीद ताकतवर हो गई। और तुम्हें जो ताकतें उस अमल से मिलेंगी वो उसके मुकाबले के लिए कम हैं। तुम्हें उससे लड़ने के लिए उससे भी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। मैं इसी वजह से परेशान हूँ कि तुम उसका मुकाबला कैसे कर पाओगे। बुजुर्ग की बातें सुनकर उसका मुंह तौरी की तरह लटक गया। अब एक ही सूरत है बेटा, बाबा जी ने अफसुर्दगी से कहा। वो कौन सी? उसने बुजुर्ग से सवाल किया। मुझे भी अपनी ताकतें तुम्हें देनी होंगी। सिर्फ उसी सूरत में तुम उसके मद्दे मुकाबिल ठहर पाओगे, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मौत का पैगाम आ जाए तो मेरी कुछ ताकतें जो मैंने इकट्ठी की थी ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब मैं तुम्हें सौंप दूँ। बुजुर्ग की बात सुनकर अब्दुल्ला की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसने रोते हुए कहा, बाबा जी, मैं आपका कुछ भी नहीं लगता था, फिर भी आपने मुझे अपने बेटे की तरह रखा। मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझा, मुझ पर इतनी इनायत और मेहरबानी की कि जिनका बदला मैं आपकी गुलामी करके भी अदा नहीं कर सकता। अब आप अपनी ज़िंदगी का हासिल भी मुझे देकर एक और एहसान करना चाहते हैं? नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुमने मुझे अपना दुख बताया तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये सब तो इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ था। और वैसे भी अपनी ताकतें तुम्हें ना दूं तो किसको दूंगा? मैं इन्हें ज़ाया भी तो नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। ठीक है बाबा जी, मैंने आपको उस्ताद समझा है, इसलिए आपकी जो मर्जी करें, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगा। शाबाश बेटा। फिर बुजुर्ग उसे लेकर उस खाल पर बैठ गए जो झोंपड़ी में कोने में बिछी हुई थी। बुजुर्ग ने उसे अपने सामने बिठाया और 2 जानों बैठने के लिए कहा। अब्दुल्ला ने ऐसे ही किया। फिर उनके हुक्म पर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर बुजुर्ग अब्दुल्ला के सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे। फिर फूंकें मारनी शुरू कर दी। उनकी हर फूंक पर अब्दुल्ला की हालत बदलती जाती। उसे यूं लगता जैसे उसके जिस्म में कोई गरम गरम शय दाखिल हो रही हो। वो इसी हालत में 1 घंटे बैठे रहे। फिर बाबा जी के हुक्म पर अब्दुल्ला ने अपनी आंखें खोल दी। उसे अपने आप में वाज़ेह तब्दीलियां नजर आईं। उसकी आंखों में भी वही चमक थी जो बाबा जी की आंखों में थी। अब तुम आम इंसान नहीं रहे। इस वक्त तुम्हारे कब्जे में कई रूहें, बदरूहें, जिन, चुड़ैलें आ चुकी हैं। बेटा, इन ताकतों को कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा इंसानियत की खिदमत करते रहना, किसी को मायूस नहीं करना। इसके अलावा भी कई और नसीहतें बुजुर्ग ने की जिन पर कायम रहने का अब्दुल्ला ने वादा किया। आज उसके अमल की आखिरी रात थी। बुजुर्ग ने उसके लिए बहुत सारी दुआएं की और फिर बोले, आज रात तुम्हारे पास वही चुड़ैल आएगी। तुमने उससे बिल्कुल डरना नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, अपने अमल को मुकम्मल करना और किसी सूरत हिसार से बाहर नहीं निकलना। रात होने वाली थी। अब्दुल्ला ने जी भरकर बुजुर्ग से बातें की। फिर बाबा जी ने अब्दुल्ला को गले से लगाया और कहा, अब तुम्हारे अमल का वक्त हो गया है, लेकिन याद रखना जो हिदायत मैंने दी हैं उस पर अमल पैरा रहना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे। उसने बाबा जी से वादा किया कि वो किसी सूरत उनकी बातों को नहीं भूलेगा। फिर बाबा जी ने अब्दुल्ला को ताकतों के इस्तेमाल का तरीका भी बता दिया।
عبداللہ نے آنکھیں بند کر کے عمل پڑھا اور مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ آج رات بہت تاریک اور خوفناک تھی۔ جنگل میں ماں سوائے گیدڑوں اور جھینگروں کے کچھ نہیں تھا۔ پورے جنگل پر محیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے حصار کھینچا اور بیٹھ کر عمل کا ورد کرنے لگا۔ اسے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کئی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ جب اس نے آوازوں کی سمت دیکھا تو اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا، کیونکہ اس کی طرف سینکڑوں گوشت سے آری ڈھانچے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور تیز بھالے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اسے کچا چبانے والے ہیں۔ اس نے دل کو مضبوط رکھا اور عمل میں مشغول رہا، کیونکہ اسے بابا جی کی بات یاد تھی کہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ ڈھانچے حصار سے ٹکراتے ہی غائب ہو جاتے۔ ایسا صبح تک ہوتا رہا۔ آخری وقت میں وہی لڑکی نمودار ہوئی جو اسے پہلی بار راستے میں ملی تھی۔ اس کے انگ انگ سے مستی ٹپک رہی تھی۔ وہ مستانی چال چلتی ہوئی قریب آئی۔ اس نے عبداللہ کو بہت لبھایا، کئی حربے آزمائے مگر بے سود رہے۔ پھر اس نے اپنی شکل بدلنا شروع کر دی۔ اس کے جسم پر لمبے لمبے بال اگائے جن میں زہریلے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں تارکول جیسی ہو گئیں۔ اس کے 2 دانت جو کہ سامنے تھے باہر کو نکل آئے۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے عبداللہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا جب اس نے خون پیا تھا۔ اس نے عبداللہ سے وعدہ کیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گی، لیکن اس کی معافیاں دھوکہ ہی تھی۔ صبح ہونے والی تھی۔ عبداللہ کا عمل پورا ہو گیا، اس لیے اس نے بسم اللہ پڑھ کر حصار سے باہر قدم نکال لیے۔ اس کا باہر نکلنا تھا کہ چڑیل اس پر برس پڑی۔ اس نے عبداللہ پر کبھی آگ کے گولے پھینکے، تو کبھی تیر، کبھی خون کی بارش، تو کبھی سانپ بچھو، مگر سب کے سب عبداللہ کے قریب آتے آتے ختم ہو جاتے۔ جب اس چڑیل نے اپنے سارے وار ناکام دیکھے تو وہ گڑ گڑانے لگی۔ عبداللہ نے عمل کے الفاظ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو اس کے اعضاء جسم سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھی۔ عبداللہ نے مزید عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ مصیبت کے ٹلنے پر عبداللہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تیز آندھی شروع ہو گئی اور بے شمار بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، جیسے اپنی ساتھی کی موت پر آنسو بہا رہی ہوں۔ پھر عبداللہ نے دل میں بزرگ کا تصور کیا اور آنکھیں بند کر لیں، اور پھر کھولی تو وہ بزرگ کے سامنے تھا۔ اسے دیکھتے ہی فرتے جذبات سے بابا جی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا جی نے عبداللہ کو گلے سے لگایا اور بولے، چڑیل کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب وہ اپنے دادا دادی سے ملنے جا سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ اب اپنا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ اس نے بابا جی سے ڈھیروں دعائیں لیں اور واپس گھر آ گیا، اور بابا جی کی ہدایت کے مطابق ضرورت مند اور دکھی لوگوں کی مدد میں وقت گزارنے لگا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔